Again, welcome in my YouTube channel and good morning to all of you. Again, we will start the linear equation in two variable of exercise 2.2. Yesterday we have to complete the question number 1 to 14. Now today we will discuss about question number 15. The question number 15 is mentioned here. I have total 300 rupees in coins of the denomination. मतलब I have a number of the coins of the denomination. मेरे पास जो coins है I have 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees. The number of 2 rupees coins is 3 times the number of 5 rupees coins. The total number of coins is 160. I have total 160 coins. Then how many coins of this denomination are with me? How many coins are there? We have to find. The first question is given. The question is given 2 rupees coins is 3 times the number of the 5 coins. It means first we should consider how many coins are the 5 rupees. So let's consider the number of 5 rupees coins be x. We have no idea how many 5 rupees coins are there. So we are consider let the number of the 5 rupees coins will be x. Then the number of 2 rupees coins. Then number of 2 rupees coins be. The number of 2 rupees coins is 3 times. Question is given 3 times of the number of 5 rupees coins. So it will be 3x. 3 times मतलब 3 into x, 3x. Total number of coins is how many here? We have 160. If I have 5 rupees coins x and 2 rupees coins and 3x, and how many coins will be for the 1 rupees? So first we add these coins. After this solution, we subtract from the 160 for finding the 1 rupees coins. Taking it, then number of 1 rupees coins. Total number of coins is 160. So we subtract 160 minus x plus 3x. क्योंकि हमारे पास जो पहला वाला जो आपके पास 5 रुपये कॉइन्स है और 2 रुपीज़ कॉइन्स है, पहले हम उनको काउंट कर लेंगे कितना है और उनको हम ऐड करके अगर 160 में से सेपरेट करेंगे तो हमको 1 रुपीज़ के कॉइन्स मिल जाएंगे. तो हम देखते हैं फर्स्ट वी सम 160 माइनस 4x. ओके, इट इज क्लियर. हाँ, अब क्वेश्चन इज आई हैव टोटल हाउ मेनी रुपीज आर 300 रुपीज, 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज. ओके, suppose I have 1 coins of 5 rupees, it means 5 rupees. If I have 2 coins of 5 rupees, it means 5 multiplied by 2, I have 10 rupees. If there are 4 coins of 5 rupees, it means we should multiply 5 into 4, it means 20 rupees. So we should write here according to question. If 5 it is the 1 rupees coins. एक रुपीस की कॉइन्स अगर एक है, अगर 10 होंगे 10 इंटू 1, अगर 5 होंगे 5 इंटू 1. देखिए 1 रुपीस कॉइन्स कितने 1 इंटू 160 माइनस का 4x प्लस 2 रुपीस कॉइन्स कितने 3x. तो टोटल मनी है हाउ मेनी मनी आर देयर 2 इंटू 3x. 5 रुपीस के कॉइन्स कितने, अगर एक 5 रुपीस कॉइन्स x है, एक हो 1 होगा तो 5 into x, 2 होगा तो 5 into 2, but there are x, so we can sign 5 into x. Total money कितना आएगा after adding this money we will get 300 rupees. So there should be 300. Okay, now we start solving this question. Okay, so 100 minus 4. If you multiply 100 minus 4 with x, you will get 160 minus 4x, and then 2 3 plus 6x plus 5x is equal to 300 rupees. Okay. Then the next question. Okay. Now again
क्वेश्चन 160, ठीक है। 4 में से अगर मैं 6 में से 4 उठाऊंगा तो 2 बचेगा और 2 + 5 = 7x = 100 = 300, okay। For the finding the value of first x, we transpose what is given in the addition or what is given in the subtraction. First we transpose 160, then its signs will be change 300 minus 160. If we subtract 300 minus 160, we will get 140 is 7x. Then what is the value of x? For the value of x, we divide 120 upon 7 is equal to 20. This means 20. The value of x means the number of 5 rupees coins is 20, and the number of 2 rupees coins will be 3x. Number of 2 rupees coins will be 3. 20 into 3 is equal to 60. This is the number of 2 rupees coin is 16. Number of 1 rupees coin is number of 1 rupees coins. The 1 rupees coins is 160 minus 4 into 20, right? If we subtract 160 minus 420, how many rupees we can get? 160. Okay. I will solve here. Number of 1 rupees coins B. 1 rupees coins का देखिए यहाँ पे लिखा है 160 minus 4x, तो यहाँ पे होगा 160 minus 4. The value of x is given here 20. क्या पड़ेगा 20? तो 160 minus 80 will be 80. It means 1 rupees के coins कितने होंगे 80, 5 rupees के coins कितने होंगे 20 और 2 rupees coins कितने होंगे 60. So it is your final result for finding the how many coins are there for each term. Okay. Now we start question number 16. Okay. Okay. The next exercise 2.2, question number 16. The last question of this exercise. Question say an organization organize essay competition. He decide if anyone has winner, he get 100 rupees. अगर कोई जीत जाता है तो उसको 100 रुपीज ऑर्गेनाइजर देगा. इफ एनीवन हु हैव नॉट विनर दे गेट ओनली 25 रुपीज. अगर जो विनर नहीं लेता है, जो पार्टिसिपेंट है ओनली, दे विल गेट 25 रुपीज. इफ टोटल नंबर ऑफ कंपटीटर आर 63, अगर टोटल नंबर ऑफ कंपटीटर कितने 63 हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड इज 300,000 रुपीज. अगर कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट और विनर जितने आए थे सबको मिला के अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया 3,000 रुपीज, देन फाइंड हाउ मेनी कंपटीटर, हाउ मेनी विनर्स एंड हाउ मेनी पार्टिसिपेंट आर देयर. ठीक है, नॉट विनर. तो वो हमको फाइंड करना, हमको नहीं पता विनर्स कितने. मान लेते हैं विनर एक्स है, तो आपके पास 63 पीपल हैं, 63 स्टूडेंट हैं. अगर से उसमें एक्स विनर है तो बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, नॉट विनर, ओनली पार्टिसिपेट. ठीक है, लिखेंगे देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नॉट विनर. टोटल आपके पास 63 है, जिसमें से x विनर है, तो कितने विनर नहीं है, तो हम क्या, अगर 63 में से x को हटा दें. सपोज अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, उसमें 2 स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं,
they are getting the very good marks, how many student they are not getting the good marks. तो 10 में से जितने गुड मार्क्स हैं उसको सेपरेट कर दें, मतलब 10 माइनस 2 8 बचेंगे। तो जो 8 हैं वो आपके अच्छे बच्चे मार्क्स नहीं लाए। तो उसी तरह टोटल 63 बच्चे, अगर x अच्छे बच्चे हैं जो विनर है, तो कितने बच्चे जो हैं केवल पार्टिसिपेंट के जो विनर नहीं है, तो टोटल जो स्टूडेंट है उसमें से जो आपके विनर्स को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ नॉट विनर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विनर है द हु हैव विनर दे गेट 100 रुपीज एंड हु हैव नॉट विनर दे गेट 25 रुपीज, बट टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड वाज 3000। So we can say according to क्वेश्चन किसका, अगर एक बच्चा विनर है तो उसको 100 मिलेगा, अगर दो बच्चे होंगे तो 100 into 200 डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसी तरह हमारे पास नहीं पता है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर, तो सो इफ वन स्टूडेंट इज 100 into 1, if two students are 100 into 2, इसलिए accident if there are accident that it means 100 into x प्लस ये विनर का हो गया, और जो विनर नहीं है वो क्या 25 रुपये पा रहे हैं। तो 63 माइनस एक्स, टोटल जो मनी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो आपको कितना था 3000 रुपीज। ठीक है, तो टोटल मनी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड वाज द स्टूडेंट वाज 3000 रुपीज। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, 100x प्लस 25 सिंपलीफाई, 25 3 75 कैरी में 7, 25 से 157। ठीक है, 25 से 75 7, 25 से 150 और 7। इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वी यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इफ एनिमल इज द टर्म ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट वी multiply the first term, after that we multiply the second term, then it will be equal to the 3000। इट इज क्लियर। अब देखते हैं x यहाँ फर्स्ट वी सार द लाइक वेरिएबल वैल्यूज। ओके, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो 100 माइनस 25 इज 75। ये प्लस में जब इसको ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू द, इट शुड बी इन द नेगेटिव, माइनस 1575। राइट, इसको सेपरेट करते हैं, ये इसको कैरी देगा, यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा, आपका 5 होगा, 9 में से 7 जाएगा 2 होगा, 9 में से 5 जाएगा 4 होगा, यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा। सॉरी, ये इसको कैरी दिया, यहाँ 2 हो गया, 2 में से 1 जाएगा 1 जाएगा। राइट, अभी देखिए 75x, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फॉर द वैल्यू ऑफ x वी शुड डिवाइड 1425 अपॉन 75। अब हम इसको सॉल्व करके x वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे x क्या है 1425 अपॉन 75। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं 25 से डिवाइड करते हैं, 25 3 जा 7 टाइम हो जाएगा, 75 होता है, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, इसको 142 125, तो आपका जाएगा 7 3 1, आपका हो जाएगा ये 25 5 जा 125, इफ वी सब्ट्रैक्ट वी गेट 7, इट इज 175, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175, ये आपका 7 आ जाएगा। राइट, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी 57 डिवाइडेड 3, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। इट मींस टोटल नंबर ऑफ विनर इज 19%। नॉट विनर कितना होगा, नॉट विनर बी 63 माइनस 90, 12 में से 9 गया 34 देगा 514। ओके, तो आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ जो विनर थे वो आपके पास कितने हैं, ये आपके टोटल नंबर ऑफ विनर इज 19%। ठीक है, जो विनर है आपके पास कितना है, विनर 19 और नॉट विनर आपका 44, टोटल ऐड करेंगे तो ये आपका 63 हो जाएगा। इट इज योर फाइनल रिजल्ट।
It means how many number are how many students are the winner and how many students are not winner, they are here. Okay, तो okay, बट आपके क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मेनी नंबर्स आर विनर, योर आंसर इज राइट. अगर क्वेश्चन टोटल पूछा नॉट विनर तो वी कैन आल्सो फाइंड 44. ओके, तो इट्स ये एक्सरसाइज 2.2 इज ओवर. तो that's all for today, and for getting the next video, when I will upload any video you will directly receive by please subscribe the video for getting the next, subscribe and like the video for getting the next video. Thanks to all of you.